हाँ जी, ਕਲਾਸ 12th ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਕਸ ਤੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰੀਚ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਐਂਡ ਕਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਬੱਚੇ ਕਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਕਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁਆਰਡ ਇਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੁਆਰਡ ਇਨਵਰਡ, ਟੁਆਰਡ ਇਨਵਰਡ, ਟੁਆਰਡ ਇਨਵਰਡ। ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਆਰ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਫੇਅਰਸ centered on a negative charge. The potential decrease as we move further away from the charge. The field lines point radially inward toward the negative charge. Inward ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਓਗੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕੀ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਗੈਪ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਰੈਡ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਕਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਰੋ 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 ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਟੁਆਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ permittivity of free space of vacuum, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਈ, ਟੂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ। ਇੰਡੀਕੇਟ ਹਾਊ ਮਚ ਬੈਟਰ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਐਟ ਸਟੋਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੈਕਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾਰੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ। ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ, ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ electric field that a dielectric material can withstand before it breaks down and become conductive. It is usually measured in volt per meter, ठीक है। डायलैक्ट्रिक स्ट्रैंथ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਟਰਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕਾਪਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕॉन, ठीक है। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ बताना है कॉपर ਲਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਡ ਟੂ ਮੋਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਲ ਆਇਨਸ, ਹਿੰਡਰਿੰਗ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਿੰਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕਣਗੇ। ਤੇ ਅਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ has a very small or almost negligible temperature coefficient of resistivity. Its resistivity remain relatively constant over a wide range of temperature. यानी wide range of temperature तक जो resistivity coefficient रहता है वो लगभग same रहता है, वो change नहीं होता। This make it is useful in application like strain gauge and resistor where temperature stability is critical. Next आंदा बच्चे silicon, that is semiconductor। Semiconductor device ਤੁਸੀਂ already पढ़ चुके हो।
ठीक है जी। सिलिकॉन हैज़ अ नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है ना, ਇਹ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਿਓਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਲੀਕਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਸਿਲੀਕਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੌਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਲਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ flow करता है। It is because increased temperature provide more thermal energy to break covalent bond, creating more free charges, carrier, electron and hole, which increase conductivity and decrease resistivity. Clear? Next ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ क्वेश्चन आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ चौथा नंबर क्वेश्चन, define difference between EMF and terminal potential. Electromotive force ये पता ही है बच्चे, it is the potential difference across the terminal of the cell when no current is being drawn from the circuit. जो तो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा उस टाइम जी पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने EMF कहते हैं। It is the total energy supplied by a cell to move a unit charge around the entire circuit. Its characteristic to cell itself. ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਿਸੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵੈਨ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਇਟ, ਯਾਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ EMF। EMF ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ EMF ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗੈਲਵੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी तो बच्चे ठीक है जी, इतना तक हो गया सी। आ रेडियल मैगनैटिक फील्ड इज एसेंशियल इन मूविंग कॉयल, गैल्वेनोमीटर एंड DC मोटर, इन्हां विच की हुंदी है, एसेंशियल हुंदी है। इट इंश्योर दैट कॉयल ऑलवेज एक्सपीरियंस आ मैक्सिमम टॉर्क। हुण इहदी देखो रेडियल मैगनैटिक फील्ड दी इंपोर्टेंस की है ते कि जिहड़ी टॉर्क विच होनी है वो कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होवे। ठीक है, जिहड़ी विच आपां रन करनी होंगी है टॉर्क प्रोड्यूस होंगी है, टॉर्क की होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए रिगार्डलैस ऑफ इट्स रोटेशनल पोजीशन, कि किसी भी पोजीशन में कॉयल साडी पई होवे उस जिहड़ी टॉर्क लगे हो हमेशा की होवे मैक्सिमम होवे। ठीक है, दिस इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। दिस रिजल्ट इन लीनियर स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड कांस्टेंट टॉर्क ऑफ द मोटर। उस तो बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वाई कैपेसिटर ब्लॉक DC। ठीक है, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये पता ही है, दो प्लेट्स बनिया होंगे ने, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तुसीं कंसीडर करिया होंदा। व्हेन अ DC volt is applied, a charge accumulate on the plates creating electric field across the dielectric। ठीक है, डायलैक्ट्रिक ਦੇ across ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। when the capacitor is fully charged, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, the electric field oppose the flow of further charge, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਬਲੌਕਿੰਗ ਦਾ DC। ਤਾਂ DC ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੌਕ। In simple term, a capacitor charge up to DC voltage, यानी कि DC वोल्टेज तक वो चार्ज होता है, then act like a open circuit। तो ओपन सर्किट के तरीके नाल की करता है, काम करता है, जिहदे विच कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हुंदा। उस तो बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो यूज दसने, दो प्रॉपर्टी, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर की होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। आयनाइजिंग रेडिएशन, दे कैन आयनाइज एटम एंड मॉलिक्यूल मेकिंग दम हजार्डियस टू लिविंग टिश्यू। ठीक है, लिविंग टिश्यू के उत्ते अगर पै जाएगा तो उन्होंने की करता है, आयनाइज करता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नो चार्ज नो मास, गामा रे दा ना तो कोई चार्ज है ना तो कोई मास है। यूज़ की होंगे स्टरलाइजेशन, हुणे तो बच्चे ही है ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, यूज टू स्टरलाइज मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड फूड बाय किलिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। कैंसर ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी ਦੇ ਵਿੱਚ यूज किया जाता है, यूज टू किल कैंसर सैल इन टारगेटेड रेडिएशन थैरेपी। इंडस्ट्रीयल रेडियोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦਾ, फैक्ट्री ਦੇ ਅੰਦਰ इंस्पैक्ट ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੈਲਡ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिफेक्ट ਤਾਂ नहीं है, है ना, ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ जो वैल्ड वगैरह होंगे कि कच्चे तो नहीं हो गए, कच्चे वैल्ड तो नहीं है, कुछ तो क्रैक वगैरह तो नहीं है, उन्होंने डिटेक्ट करने इंडस्ट्री यूज होता है। एन इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटोन है सेम कनेटिक एनर्जी, तो इलैक्ट्रॉन के प्रोटोन की कनेटिक एनर्जी की है सेम है। विच वन हैज़ लार्ज डी ब्रोगली वेवलेंथ, पूछ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ लार्ज की होगी, तो कि देखो इलैक्ट्रॉन है लार्ज डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आंसर तो बस इन्ना ही हो गया, बस रीजन आप थोड़ा तुहानूं एक्सप्लेन करते हैं कि यदि लार्ज डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो लार्ज क्यों है ना। देखो द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय H अपॉन P। ठीक है जी, H की हो जाएगा साढ़े को प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा, P की हो जाएगा साढ़े को मोमेंटम हो जाएगा, फिर H इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, P इज कॉल्ड मोमेंटम। सिंस काइनेटिक एनर्जी की होंदा P, देखो हुण तुहानूं इत्थे दिक्कत आऊगी, P स्क्वायर बाय M कित्थों आ गया, एक मिनट रुकियो। ठीक है, आ समझो हुण इत्थे। ठीक है, देखो साढ़े को काइनेटिक, एक मिनट ब्लैक पेन कर लिए।
फिर साडे कोल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होंदा है। काइनेटिक एनर्जी की होंदी है साडे कोल हाफ एम वी स्क्वायर होंदी है, क्लीयर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। मैं इनू की किया एम नाल डिवाइड किया, एम नाल की करता मल्टीप्लाई, यानी इतने एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाऊगा, एम नाल एम कट रहा, ठीक है। फिजिक्स वाले बंदे को पता लग गया ना। तो कितना आ जाऊगा 1/2, इतने एम इंटू वी की होंदा साडे कोल मोमेंटम होंदा, यानी मोमेंटम का क्या आ जाऊगा स्क्वेयर आ जाऊगा। इतों बच्चे तुसीं कैलकुलेट करोगे काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू एम अंडर दी रूट, ये साडे कोल की आ जाऊगा मोमेंटम, ठीक है। ये मोमेंटम आ गया। उस तो बाद आप लैम्डा का फॉर्मूला पढ़िया सी, की सीगा एच अपॉन पी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आप कितना फाइंड कर लिया 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। इतने की आ गई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लैम्डा जो डायरेक्टली प्रपोर्शन है लैम्डा सॉरी इनवर्सली प्रपोर्शनल है कि काइनेटिक एनर्जी के। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वो लैम्डा घट है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी घट है वो लैम्डा की हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। हूँ आई लिखा होया फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी की हो सेम हो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू स्क्वेयर रूट ऑफ मास, ठीक है जी। अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो हम जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल कादे है इतने मतलब मास दे भी किया है इनवर्सली प्रपोर्शनल है। हूँ आप दसो बच्चे मास की घट होंगे, ओबीयसली इलैक्ट्रॉन का मास की होंगे घट होंगे, अगर इलैक्ट्रॉन का मास घट होंगे तो वेवलेंथ की होंगी है साड़ी ज़्यादा होंगी है। दिस इज द प्रॉपर रीजन जिदे करके ये आंसर है, क्लीयर। अमंग रेड ग्रीन फोटोन विच वन इज मोर एनर्जेटिक, ठीक है। बच्चे नीचे ना कमेंट करके जरूर दस्सिओ जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इन्होंने थोनू किन्ने आते सी, थोड़े लिए किन्नी की वीडियो बेनीफिशियल रही है, ठीक है। अगर इस वीडियो तुहानू कोई फायदा हो रहा तो नैक्सट पार्ट बनाने तो देखो मैनू फायदा है। अगर तुहानू इस वीडियो तो कोई बेनीफिट नहीं है तो नैक्सट पार्ट के उत्ते मैनू फिर ज़्यादा मेहनत करने की लोड़ नहीं है, ठीक है। अगर हो रहा तो नीचे कमेंट के जरूर इस गल जरूर दस्सिओ अगर तुहानू फायदा है या नहीं है, ठीक है। थोड़े कमेंट डिसाइड करेंगे नैक्सट पार्ट वीडियो का किस तरीके नाल बनना है तो की बनना है, ओके। चलो देखते हैं। तो अपने ग्रुप्स के नाल फ्रेंड्स के नाल जिन्ना हो सके शेयर कर दो, अपनी स्टोरियां के उत्ते लगा दो इनू, ठीक है। चलो ग्रीन फोटोन, ग्रीन लाइट हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी दैन रेड लाइट। उन्हें पूछा सीगा रेड और ग्रीन के विचों फोटोन के विचों विच हैज़ मोर एनर्जेटिक, तो जी फ्रिक्वेंसी होंगी है ग्रीन की ज़्यादा होंगी है कि रेड लाइट नालों, क्योंकि रेड की ये तो पता ही है रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होंगी है। अगला ठीक है एक्सप्लेनेशन की है बच्चे द एनर्जी ऑफ फोटोन ई इज गिवन बाय, हाँ जी एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़िया की होंगे एच इंटू न्यू। आप न्यू का सिंबल यूज करते हैं, न्यू की होंगी फ्रिक्वेंसी, इतने की एफ लिखा आया, फिर एच इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, एफ इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। इन ग्रीन कलर लाइट हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी की होएगी ज़्यादा होएगी। ईजी पीजी क्वेश्चन। डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का मतलब होंगे किसी चीज़ का जुड़ना, कंबाइन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई, रिलीजेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन, सन के अंदर थानू पता है एनर्जी जी प्रोडक्शन होंगी है बाय यूजिंग फ्यूजन होंगी है। फ्यूजन में किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होंगे, जिमें कि स्प्लिट ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैन बी इनिशिएटेड बाय बॉम्बार्डिंग अ न्यूक्लियस विद न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाएगा, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की फॉर्म के इस तरीके आप रिप्रेजेंट करना है। तुसीं जो पढ़िया होगा बच्चे एटॉमिक हाइड्रोजन एटम की फॉर्म के इस चीज़ को पढ़िया होगा है ना। देखो जी सेंट्रीपिटल एनर्जी है दैन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है किसी इलैक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो किदे थ्रू मिल रही है बाय इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू मिल रही है। यदा मतलब जी सेंट्रीपिटल फोर्स होएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी हाफ एम बी स्क्वेयर, हाफ एम बी स्क्वेयर कि इक्वल होगी साढ़े कोल इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी, यानी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी साढ़े कोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों के चार्ज ई ले लिया, चार्ज की ले लिया ई ले लिया ई स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस हो गया रेडियस की ले लिया आप आर ले लिया। इन्नी गल क्लीयर होगी। हूँ इतने जो मैं के सिंबल यूज किया होया इनू आप सारे की मान लिया के मान लिया, ठीक है। ये साढ़े को लिखा होना मैं वेयर के इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हूँ इतने जो जैड सिंबल देखो इतने जैड सिंबल की कर रहा है एटॉमिक नंबर की तरीके ट्रीट हो रहा है ना, क्योंकि जैड आ जाएगा वो कितने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट ने उस अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर तुम हाइड्रोजन एटम की गल करोगे हाइड्रोजन एटम लिए उत्थे 1 होंगे तो सिंपल तुम जैड को इतने इग्नोर करके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, ठीक है। हूँ बोहर अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटिटाइज अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी की होंगे एम बी आर कि बराबर होंगे एन टाइम एच अपॉन 2 पाई दे इक्वल होंगे, ठीक है। इतों किस एक आप वेलोसिटी का एक्सप्रैशन करना है, अगर वेलोसिटी का एक्सप्रैशन करना है तो आर की क्या कर लोगे वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो बच्चे इतों जो आर की वैल्यू फाइंड करोगे आर थोड़े को कितना आ जाएगा एन एच 2 पाई अपॉन दे विच कितना आ जाएगा इतों एम ते आप वी करना ना, हाँ एम ते वी आ जाएगा, ठीक है। हूँ आर डी वैल्यू थोड़े को आई है आर की जस्ट इतने की कर दो दोनों साइड सबस्टिट्यूट कर दो
ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਟ ਲਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ mv² ਅਪੋਨ e² ਅਪੋਨ ਇੱਥੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ nh ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2 ਪਾਈ, ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਤੇ m k ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, 2 ਪਾਈ ਤੇ m ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। v ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ v ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ m ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ m ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਚਿਆ k 2 ਪਾਈ e² ਅਪੋਨ nh। ਆਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ 2 ਪਾਈ e² k h ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪੋਨ h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। उसके बाद आंदा है डिस्कस द लाइमर एंड बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइमर सीरीज के बच्चे आ जाओ तुसी ट्रांजिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम हैवी एनर्जी लैवल टू फस्ट लैवल जी आती है लाइमर सीरीज आती है। ठीक है जी, लाइमर उस तो बाद बार्मर सीरीज एमिट फोटोन इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, एक ये होंगे ने अल्ट्रा वायलेट रीजन होंगे ने। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन लिमिट कहा जाता है उन्होंने। क्लियर हो गया। अगला देखो बच्चे बार्मर सीरीज ट्रांजिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी टू सैकेंड लैवल होंगे ने एमिट फोटोन इन विजिबल और अल्ट्रा वायलेट। ठीक है जी, वैसे तो आंसर मेनली विजिबल ही लग्या होंगे, अल्ट्रावायलेट घट होंगे, बट तुम दोनों लिख सकते हो, गलत नहीं है। बार्मर सीरीज आर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट डिवेलपमेंट ऑफ बोहर मॉडल। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक साडा प्योर टाइप का सैमीकंडक्टर भी होंगे, एग्जाम्पल प्योर सिलिकन, प्योर जर्मेनियम। मतलब 0 डिग्री टैंपरेचर के उत्ते इट बिहेव एज आ इंसुलेटर। अगर इन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी दी जाती है, मतलब हीट प्रोवाइड की जाती है, दैन इट बिहेव एज अ कंडक्टर। कंडक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ते नंबर ऑफ होल्स ये होंगे इक्वल होंगे। कनैक्टिविटी इज लो एंड इंक्रीज विद टैंपरेचर। टैंपरेचर देने आप पढ़िया से बॉन्ड की होंगे ब्रेक होंगे, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिहदे फ्री कैरियर की होंगे ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर ये डोपिंग की जाती है। इंप्योर सैमीकंडक्टर होंगे डोपिंग की जाती है। 1 in a million यानी 1 रेशियो 10⁵ यानी 10⁵ एक ही इम्प्योरिटी की जाती है, ऐड करी जाती है। कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बाय डोपिंग, डोपिंग कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कैन बी एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप दो तरीके की एक्सट्रिंसिक होंगे सैमीकंडक्टर, एक एन टाइप का होंगे, एक पी टाइप का होंगे। एन टाइप पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज होंगी है, यानी जो लास्ट शैल में जो बॉन्ड होंगे है ना, किन्ने इलैक्ट्रॉन लास्ट शैल पे होंगे 5 होंगे। पी के लास्ट शैल इलैक्ट्रॉन कितने होंगे 3 होंगे। इट इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। एक्सेस ऑफ इलैक्ट्रॉन एच की होंगे एक्सेस ऑफ होल्स होंगे ने। नेक्स्ट है बच्चे कंडक्टिविटी इज हायर दैन इंट्रिंसिक एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय डोपिंग कंसनट्रेशन। तो भी 1 मिनट रुके हो, बस बादाम आ गए, बादाम खा लिए पहले आप काम करना कि सौखा भरावा अजकल। चलो जी ओके आ जो 2 मार्क्स से लगभग कितने सारे आओ इन्ने बड़े क्वेश्चन डिस्कस कर ले। कितने मिनट की वीडियो होगी? 12 मिनट की वीडियो होगी। वो भाई एक बार इन्हों पढ़ लो। ठीक है, जो वीडियो थोड़ा वधिया लगती है तो दस्सिओ, फिर नैक्सट पार्ट के आप बचे हुए क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराइए फटाफट, है ना। तो वीडियो में ਵੱਧ 11 मित्रों शेयर कर दो, ला दो अपनी स्टोरियां के उत्ते। तो इस तो बाद देख लेंगे LEP सारा कुछ तुहानूं चक देंगे, करा देंगे जिन्ना भी हो सके अपने कोलों बनता होया, अपने वालों पूरा जोर लावांगे। ठीक है जी, मिलते हैं नैक्सट पार्ट के। फिलहाल तुसीं इन्नी चीज़ नूं अपना रिवाइज करो। तद तक लिए सत श्री अकाल।